In error control coding, basic algebra is needed. To begin, we can start by an example of a set. This set is called a group. Let us say it is called a group. So the elements in G are in a group which are operatable by this operator. Now this operator is called modulo 2 addition or XOR operation. XOR operation applies on these two elements. Now to define this set as a group, we need some conditions to be followed. What is a group? G along with this operator that operates on the elements is a group if this operator allows associative rule, which is this association is allowable, these two associated, now these two associated gives same result. So odd operation gives a 1, and again 1 and 0 odd operation gives a 1. XOR is an odd operation, gives a 1 when odd number of ones are there. So this happens. So associative, it is. Identity element should exist in this group. So identity element, what it does is, any element of the group when operated with this operator of the group with an identity element gives the element that is being used. So the identity element commutatively operated by the binary operator with any element of the group 0 or 1, A represents 0 or 1, should give the 0 or 1 or the element itself. Let's take the example. Suppose we take 1 from the group and modulo 2 addition or XOR operation is done with 0, it gives a 1. So 1 is given as it is. Similarly 0 is given as it is. So 0 is the identity element for this group. So identity element exists. Third, inverse element should exist. Inverse element has the property, it is unique to the element, it is a unique element to the group. What it does is, when this inverse element is operated with the operator with the any one of the group elements, then the result that comes out is identity element. So inverse, in simple terms, we know if we have 2 and inverse of 2, let us say 1 by 2, we operate them with multiply them, we get 1. So that is 1 is identity element in that sense. Here that identity inverse element when operated with the operator with any element should give a identity element, and identity element is 0. So let us begin. We take element A and we try to XOR with another element 0. So we get a 0, which is an identity element. We take element 1 and we operate it with 1, then we get an identity element. So the the inverse element for 1 is 1 and inverse element for 0 is 0. So inverses of each element exist and they are unique. This is the third property for group. Fourth property is that they are commutative, and fifth is that the order is the number of elements in group G. Now we know that we have defined modulo 2 addition or XOR operation, which is this. In digital electronics, it is XOR operation. Let us now generalize this operator. We have defined this operator, now we want to generalize it. To generalize it, let us define the group starting from 0, 1, 2, all these elements up to m minus 1. So this is a m order group. Now we use the modulo 2 addition in a different way. We put square brackets, a cube surrounding this plus sign. Earlier this plus sign or a rotated plus sign, cross sign, was surrounded by a circle and it was called modulo 2 operation. Now here we will call this modulo m addition. This is modulo 2 addition, XOR operation. This is modulo m addition. Why modulo m addition? Because we are increasing from 2 different elements to m different elements, m minus 1 and 0. So total m minus 1 plus 0 is total m elements. This operates such that 2 elements of this group should give R. Now this operator
which is modulo m addition, is defined as two elements when modulo m operated will give a result r. R is remainder. So how does this work? This works like this. Element I will be added to element j and will be divided by the order, which is m, to get the remainder r. So what modulo m operation gives is basically the remainder of this sum of these two divided by the order m. Example, modulo 5 addition has to be done, suppose. So we have m equal to 5. M is equals to 5 means 5 elements in total. So those 5 elements will be 0 to m minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. These are 5 elements. M minus 1 is 4. Now we perform modulo 5 addition, which means add 3 plus 4 and divided by 5, which is m. So we'll get remainder 2. So this is the result of modulo m addition of 3 and 4 to give result 2. Another example, modulo 5 addition of 2 and 3. 2 and 3 are elements of this group. When we do perform elements of this group, when we add and divide by m, we get a 0. So the remainder is 0. This is the result of modulo 5 addition of these two elements. If we see an overview, that addition actually can result in larger values, which can be any of these. Simple addition can result in this, and when we put a box around it, it means modulo 5 addition, and 5 divides and gives remainder. So the remainders, you will note, will always land up like this, will be less than 5, and it will keep repeating. So as the numbers addition increases, numbers stay like this. These numbers will be limited by the numbers used in here. Any number of times these elements can be used. 4 times can be added. Modulo 5 addition results into 4. 4 times is 16. 16 divided by 5 is giving remainder 1. So modulo 5 addition will result in one of these numbers. Identity element for this group, modulo 5 group that we have just written, is 0. Identity element can be checked by performing this identity element, this one. Identity element, when modulo m addition done, will give with any element the element itself. So 0 when modulo m addition done with any of them will give only these numbers. For example, 0 plus 4 will give you a 4 under modulo 5 addition. Now if we progress further, we see that this modulo this is order 5 group has got, we have order m. So the element can be, let us say 0 to m is assigned to I as written here. I can range from 0, 1, 2, 3, 4. We should be let's see what happens at 5, but let us say these are the elements. When performing modulo m operations with other elements, you will get identity element in one case. So what we are trying to say is, within the group, if we perform modulo m operations, we will get something. If those somethings are zeros, then that means these are the identity elements. So this is the identity element, and these, what are these? These are inverses. So 4 has an inverse 1, 3 has an inverse 2, 2 has an inverse 3. Whenever you will get an identity element, you get inverse pairs. So I mean, when you have a 0. So for example, this is 0. So 2 modulo m addition with 3 will give us 0. That means 3 is an inverse of 2, because it is resulting in a 0. 0 here is an identity element. So whenever you get an identity element with modulo m operation, that identity element can only be obtained if the pairs are inverse to each other. 3 has an inverse 2, and so on. We have a modulo 5 addition additive group table. We list all the elements
and then we perform modulo 5 addition. This is square box, and modulo 5 addition not part of table. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2, 0 plus 3 is 3, 0 plus 4 is 4, 1 plus 0 is this, and 1 plus 3 is 4, 1 plus 4 is 5, but 5, when modulo 5 operation happens, the remainder is 0. Again 4 plus, let's say, 3 gives us 7. 7 under modulo 5 addition results in a remainder 2. So this is the result of modulo 5 addition. So this is a additive group table. From this table you can see that modulo 5 operation done results in identity element zeros at these points. So the 4 and 1, they are inverse of each other. 4 has an inverse 1, 1 has an inverse 4. Similarly 3 has an inverse 2, 3 has an inverse 2, 4 has an inverse 1. So these zeros let you tell the inverses, and diagonally if they are symmetric, then it is commutative group. More properties are there, can be seen in the book. Book, if we read through, we will get all the information about the properties. We continuing with this, we have defined a multiplicative group. Okay, we can also define a multiplicative group. Now the box inside has got a multiplication dot symbol. When I and j elements of a group are operated under this binary operation, the remainder r is obtained, and this can only happen for prime numbers. Prime numbers means that the modulo 5 here m, the order of the group, the order should be prime. Only then this operator, binary operator, which is called modulo p multiplication happens. We have replaced modulo m addition to modulo p multiplication, p representing the order to be these numbers only. Order is the number of elements in the group. In previous example, we had modulo 5 addition. Now 5 is a prime number. Modulo 5 multiplication table should also exist. Doing that, what are we doing? Earlier we were adding, and adding means adding them and the elements and dividing by the order to give remainder. Here modulo p multiplication means multiply these two numbers I into j, divide by the order, which is p, one of these, to get the remainder. Again we are having remainder. Let us see the multiplication table. 1 into 1 is 1, 1 to 2, 1 4 4, 2 1 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8. 8 is divided by 2 4 is 8, 8 is divided by 5, 5 gives a remainder 3. So this is multiplication table. Identity element for this is what? We have defined an identity element. When operated by whatever binary operation you do, should result in the element itself. So element, let us say 1 2 3, whichever is operated on within identity element, it should give the number itself. So 1.2 gives 2, 1 modulo p operation with this should give 2, 1 modulo p operation with this gives 3. So these elements are being produced with the modulo p multiplication with 1. So 1 is identity element, and 0, when 0 is operated with all the elements, it gives a 0. So one thing is that identity element is 1. The other thing is that we have not listed 0 here. Why we have not listed 0? Because all zeros will be given. So that is not listed here. In contrast, we can see modulo 7 multiplication table and modulo 7. In this we have all 0 to 7 listed. 0 to 7 here. So 1 into 0 is 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is, so this is modulo 7 addition table. And modulo 7 multiplication table is having 0 to 6 all entries, 0 0 0 1 the 0, all zeros are written here. So either you could write this or you could omit this and you can write it like this. So continuing, having known the identity element for modulo 5 multiplication table,
We can find the multiplication inverse also by seeing where a 1 is resulted. When modulo p multiplication is done with two elements, I and r are elements, modulo p multiplication should result in a 1. So I is an inverse of r and r is an inverse of I. Let us find this with the help of the table that we have created. Wherever there is a 1 in result by operating this, so 1 modulo p multiplication with 1 gives a 1. So these are multiplicative inverse. Similarly, 2 is multiplicative inverse of 3. Similarly, we have 4 multiplicative of inverse itself. Now, one more thing, this groups concept is then succeeded by fields. So, groups now mature to fields. Now, fields we will study in the next video. Here, we want to emphasize that we said this is modulo p multiplication for prime only. Let's take composite number. If we take a composite number, the results sometimes check out, sometimes they don't work. For example, if we do modulo p multiplication of two numbers, we get a 0 in G with p equal to 4. P is the order of this group. So order of this group is 4, 0, 1, 2, 3. The 4 elements are there. P is 4. When we have this with us, 0 can be written as inverse element modulo p multiplication with 0, and 0 we know we have obtained from this. This can be replaced here and then can be commuted associated with this to give 1, but 1 modulo p multiplication with 2 is 2, because 1 is an element which simply 2 ones are 2 divided by 4 will give you remainder 2. So 2 is resulting from this, but this should have been equal to 0. 0 cannot be equal to 2. So this does not work out. I mean to say, this binary operation modulo p multiplication does not work out when order is composite, not prime. So what we are trying to say is that it does not work for composite numbers. It works sometimes but not always. So completely, if we want to define it as group to obey all 4 requirements, inverse identity, commutativity, associativity, it becomes a group under this operator. So under this operator, modulo p multiplication operator, it has to fulfill that the group order now has to be prime. It cannot be composite. So with this we end with this theory and continue in the next lecture with fields. ये गैलोइस फील्ड एरर कंट्रोल कोडिंग का सब्जेक्ट है. यहाँ पे नंबर्स लिए हैं 0 से लेके 10. अगेन वही नंबर्स 0 से लेके 10 तक लिए हैं बट नेगेटिव नंबर्स लिए हैं. अब गैलोइस फील्ड अगर GF2 है जिसमें दो ही एलिमेंट हैं 0 और 1, तो जो नंबर्स इस फील्ड में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 और 1 ही होंगे. पहली बात, ये नंबर्स आएंगे कहाँ से, ये एरो बता रहा है. ये नंबर्स आएंगे या तो यहाँ से या फिर यहाँ से. मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स का भी GF2 में कोई रिप्रेजेंटेशन होता है और नेगेटिव नंबर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन होता है और वो होता है सेम. GF2 में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज सेम हैं. प्लस और माइनस साइंस आप इंटरचेंज कर सकते हो, एक तरह से यूँ भी कह सकते हैं. स्टार्ट करते हैं ये कैसे आए नंबर्स. तो 0 को अगर हम 2 से जोर ऑपरेशन करें, जो जोर एक ऑपरेटर है फील्ड का, तो 2 0 0 आएगा, 0 मिल जाएगा. 2 को 1 को डिवाइड करें 2 से इसलिए कर रहे हैं कि ये इसका फील्ड का आप एलिमेंट्स 2 हैं. तो 2 divided by 2 will give you 0. 2 or 2 mod 2 will give you 0. 3 divided by 2 will give you 1, which is 2. 3 mod 2 is 1. 4 mod 2 is 0. 5 mod 2 is 1. 5 divided by 2 is 1, because 4 subtract 2 2s are 4 and 4 subtracted gives remainder 1. 6 mod 2 will be 0, because 2 3s are 6, remainder is 0, this is remainder. Then
7 mod 2 is 1. Why do we take remainder? This is simply numbering system in which we have numbers 0 1, then again we have 0 1 0 1. We have no other representation. We have either 0 or 1. This is a field with finite elements. Galois field has finite elements, only two elements, 0 and 1. So all these numbers will be represented by either 0 or 1, either 0 or 1. And what is the representation? You just divide this by 2 to get the element in the field. अब नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या करेंगे? फॉर नेगेटिव नंबर्स you will divide -1/2 again. So when you divide -1/2, what you do is you do this: -1 you divide by 2. So you multiply something so that you get number equal to this or less than this. So 2 minus 1 is -2, which is less than -1. -2 is smaller than -1. We do the subtraction operation and we will get +1. So this is what is being done here. When you are dividing -1 by 2, you get a +1. So this is the representation or the field element. तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के आपने रिप्रेजेंटेशन लिखने सीख ली. एक और कर लेते हैं. -9 को अगर हम GF2 में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मैं इक्वल नहीं लिख सकता तो इससे छोटा नंबर लिखूंगा. अगर मैं 2 × -4 करूंगा तो -8 आएगा. -8 इज ग्रेटर देन -9. सो वी विल डू 2 × -5, get -10. You do the subtraction of it and you will get a 1. So -9 is also represented by a 1 and +9 is also represented by a 1. Sorry, this is plus sign. So 2 4s are 8. Smaller number is 8 and we subtract this, you get a 1. So both are equal. So this is about GF2. Now what about GF3? In GF3 again positive and negative numbers are to be seen but they are different. तो हम लोग GF3 जो दूसरी फील्ड है जिसमें 2 या 2 की पावर से फील्ड नहीं बनती है, अदर देन दैट बनती है, प्राइम नंबर से बन जाती है. तो ये जो फील्ड होगी इसमें प्लस और माइनस विल बी डिफरेंट. कैसे कि जैसे प्लस का हम डिवीजन करें, 1/3 करें तो 1 आता है. ये प्लस का यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिखाया है और माइनस का यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिखाया है. तो प्लस वाले का एग्जाम्पल 3 0s are 0 and 1 is the representation, 2 is the representation because 2 divided by 3 is 2, 3 divided by 3 is 0, 4 divided by 3 will be, remainder will be 1. So these are the GF3 elements. 0 1 and 2 are the 3 elements inside the GF3 field. Only 3 element finite field elements are 0 1 2, total 3. This is the order, and order means the number of elements inside the field. Order is the number of elements inside the field GF3. So this is the order, and this can be then negative wale I was trying to show you in the book. In book also it is written, so somewhere there in the book, yes, there it is. The number of elements in a group is called order. Okay, तो अब नेगेटिव वाले का एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे -1 है, -1 को GF3 में रिप्रेजेंट करते हैं 2 से. क्यों? उसका रीज़न यहाँ है कि -1 को जब आप डिवाइड करोगे तो we multiply with something to get a smaller number or equal to -1. 3 into something cannot be -1, so smaller than this is 3 into -1 will give you -3. -3 is smaller than this, so division is okay, and then you change sign and subtract, you get +2.
तो -1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज +2, -1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज +2। तो इस तरह से ये जो लास्ट वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि माइनस को कैसे डिवाइड करते हैं +3 से और कैसे उसके ये रिमाइंडर्स आते हैं, और ये रिमाइंडर GF3 में ही है, ग्रुप में ही है, इसी फील्ड में है, सॉरी नॉट ग्रुप, दिस इज अ फील्ड। और 0 और 1 मैंडेटरी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं इसमें फील्ड में। और ये रिप्रेजेंटेशन माइनस के नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन से। तो दिस इज फंडामेंटल रिगार्डिंग गैलोस फील्ड। फील्ड्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। फील्ड्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक अलजेब्रा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी सब सेटिस्फाई होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लाई साइन। एंड ऑपरेशंस चारों होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और ऑपरेशंस चारों ऐसे होते हैं कि जो भी एलिमेंट पे और चारों ऑपरेशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो फील्ड का ही एलिमेंट होगा। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इसकी एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है जो कि 0 होगी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फील्ड्स। और ये फील्ड जो है उसमें कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होंगे, और वो 2 एलिमेंट होंगे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जैसा कि हमने देखा कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 और 1 डिफाइंड है, तो फील्ड में हमेशा 0 और 1 होंगे फील्ड के पार्टिसिपेंट्स। अगेन रिपीटिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फील्ड इज ऑर्डर। कितने एलिमेंट्स हैं उस फील्ड के अंदर उसका ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे अभी अगर मैं यहीं पे ब्रेस लगा देता तो 2 एलिमेंट्स होते हैं, और इस फील्ड का जो 2 एलिमेंट है इस फील्ड का ऑर्डर होता है 2। तो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू फील्ड्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे किसी भी फील्ड में किसी भी नहीं, हाँ किसी भी फील्ड में अगर किसी भी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही आएगा, और किसी भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे जो नॉन ज़ीरो है तो 0 कभी नहीं आ सकता। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आ सकता। अगेन, और ये किसी भी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 तो उनमें से एक एलिमेंट 0 होगा। अगर एक एलिमेंट 0 नहीं है तो दूसरा जरूर 0 होना चाहिए, इसी का कोरोलरी है। कोई भी फील्ड प्राइम नंबर से बनाई जाती है, इसीलिए उसे प्राइम फील्ड कहा जाता है। तो गैलोइस फील्ड P से बनाई जाती है, वो है प्राइम फील्ड। P-1 उसका ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर P7 है, मॉड 7 ऑपरेशंस लगेंगे और उसका ऑर्डर हो जाएगा 7-1 6। तो एक्चुअली ऑर्डर तो 7 ही है, 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, बट जो उसके एलिमेंट्स होंगे 7-1 वो 0 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो ऑर्डर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर इज गिवन बाय इज इक्वल टू P। एंड अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया जाए m और जो प्राइम नंबर है उसकी पावर रेज की जाए तो GF P⁴M फील्ड बनती है, उसे कहते हैं एक्सटेंशन फील्ड। और ये जो फाइनाइट फील्ड्स हैं फाइनाइट नंबर्स से बन रही हैं, जो फाइनाइट नंबर्स से बन रही हैं, इन्फिनिट नंबर्स नहीं है, उनको गैलोइस फील्ड भी कहा जाता है, गैलोआ फील्ड, इन ऑनर ऑफ देयर डिस्कवरर। तो एक्सटेंशन फील्ड्स हो गई P⁴M, GFP बेस फील्ड हो गई, और ये इसकी एक्सटेंशन फील्ड हो गई। और हमेशा ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है ये P जो है वो प्राइम होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कंफ्यूज कर सकता है कि प्राइम नंबर से ही डिफाइंड होती है फील्ड, तो पर प्राइम नंबर्स की पावर से भी डिफाइंड होती है एक्सटेंशन फील्ड। तो और ये एक्सटेंशन फील्ड P⁴M, दिस इज द ऑर्डर, और P itself is the order if it is GFP है। तो anyway, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एडिटिव इनवर्स निकालना है 6 का तो वो 1 होगा। ये कैसे होगा? 6 का एडिटिव इनवर्स 1 इसलिए है क्योंकि 6 में कुछ ऐसा नंबर प्लस करना है जिससे 0 आ जाए, तभी तो वो एडिटिव इनवर्स हुआ। एडिटिव इनवर्स का मतलब है पहले ऐड करो और उसको इन्वर्स करो तो वापस 0 पे आ जाना चाहिए। तो 6 प्लस समथिंग शुड बी 0। 6 + 1 7 होता है, और ये 0 क्यों है? क्योंकि हम
GF7 में बात कर रहे हैं तो 6+1 जब 7 आएगा उसको मॉड 7 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए 6 का इन्वर्स हो गया एडिटिव इन्वर्स 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल 2 का निकालना है तो 2 इंटू समथिंग करेंगे जिससे कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है वो आ जाए। 2 इंटू समथिंग शुड गिव यू अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू अ रिमाइंडर 1, जब ही तो 1 GF7 में लिखा जाएगा। Anyway, तो 2 3s are 6, 6 divided by 7 is not 1, 2 4s are 8, 8 divided by 7 is 1, that's why 4 is multiplicative inverse of 2. So these are some important points and about additive and multiplicative identities, and आप मॉड्यूलो 7 एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बना सकते हो इस तरह से। तो ये सिंपली इनसे ऐड हो रहा है और यहाँ लिखा जा रहा है, तो 1 + 0 is 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 2, 3 4 5 6, 5 + 1 is 6 which is inside the field के elements up to 6 है, 0 to 6 which are total 7, order is 7, number of elements in the field। अब 6 + 1 करूँगा तो 7 आता है, 7 is not inside the field and has to be represented by a element of the field which is given by 7 divided by 7 will give you remainder 0। तो सिमिलरली यू कैन पॉपुलेट ऑल दिस। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के लिए भी आप यही करोगे, और इसमें अगर आपको कम्यूटेटिविटी देखनी है तो देख लो ये कम्यूटेटिव है क्या, डायगोनल बना के देख लो, ये सिमेट्रिक है, हाँ ये कम्यूटेटिव है। और ये 1 जो है ये इनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कर्ली ब्रेसेस 1 है तो 4 2s are 8, 8 divided by 7 is 1, yes 4 has multiplicative inverse 2, similarly 5 has multiplicative inverse 3, similarly 6 is itself। अच्छा 6 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे है इसका, ये कैसे पता लगेगा? 6 is multiplicative inverse of 6 because 6 6 are 36, when 36 is divided by 7 we will get a remainder 1। ऐसा ही यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जीरोस जो है ये एडिटिव इन्वर्स को बता रहे हैं। तो 6 + 1 is 7, 7 will give you a remainder 0 divided by 7, then 5 + 2 is 7, again remainder 0, 3 + 4 7, remainder 0, 4 + 3 is 7, 7 divided by 7 remainder 0। so 4 is additive inverse of 3, 5 is additive inverse of 2, 6 is additive inverse of 1, 1 has additive inverse 6। so this is about fields। In NPTEL lecture it was told that लीनियर कोड्स में हमको ज़रूरत होती है कि 2 कोड वर्ड्स जब हम सम अप करें तो कोड वर्ड ही मिलना चाहिए, तो गैलोइस फील्ड के जो होंगे पार्टिसिपेंट उससे ये पॉसिबल है। दूसरा कि IIT दिल्ली का NPTEL का कोर्स था उसमें फील्ड के बारे में बताया गया था कुछ, तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि फील्ड जो है प्राइम नंबर से ही बनती है और प्राइम नंबर्स की पावर से p⁴ से एक्सटेंडेड फील्ड बनती है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे हो सकती है। एंड इफ़ अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो तो वो फील्ड को फील्ड ना बोल के रिंग बोला जाएगा। एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हो कि सच दैट कि a की पावर n लगाओ तो वो 1 आ जाए, मतलब जो फील्ड का एलिमेंट है उसकी ऐसी पावर हो जिससे वो 1 आ जाए वापस। और 1 कब आएगा? जब वो मॉड लगाया जाएगा, फील्ड के अंदर ही रहे और रिपीटिशन हो जाए। इसको थ्योरेटिकली ना समझ के एग्जांपल से इजीली समझा जा सकता है। सपोज हम कोई प्राइम फील्ड लेते हैं GFQ जो कि है एग्जांपल, यहाँ पे Q = 7 ले लिया, ठीक है। अब एक ऐसा एलिमेंट होगा नॉन ज़ीरो एलिमेंट A जिसको हम प्रिमिटिव कह सकेंगे। वो प्रिमिटिव जब कहेंगे कि इसकी जो पावर्स होंगी उसमें ऐसी एक हाईएस्ट पावर होगी जिससे
सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएं और हाईएस्ट पावर से 1 आ जाए। तो 3 टू पावर 1 लिखते हैं 3 आता है, 3 टू पावर 2 लिखते हैं 9 आता है, 9 mod 7 is 2। सिमिलरली 3 टू पावर 3 लिखते हैं, mod 7 करते हैं 6 आता है, 3 टू पावर 4 लिखते हैं, जो भी नंबर आएगा mod 7 करते हैं 4 आता है। तो जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 वो सब आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स भी आ गए और जो पावर है 6 उससे 1 आ गया। तो ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट ए का ऑर्डर 6 है। ये वो ऑर्डर नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड, दिस इज ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट विच इज कॉल्ड प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ अ फील्ड। ऑर्डर इज 6 विच गिव्स यू 1 अगेन। तो ये GF7 में है। अब जैसे पावर्स 4 की लेके देखें तो यहाँ पे 4 की 3 लें तो 1 आ जाता है, पर द ऑर्डर ऑफ इंटीजर 4 इज 3 विच इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो 4 की जब पावर 3 लेते हैं तो उसका ऑर्डर है, क्योंकि 1 तो आ गया, बट ये प्रिमिटिव एलिमेंट नहीं है। ये प्रिमिटिव एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे नंबर्स नहीं बनाता। प्रिमिटिव एलिमेंट का डेफिनेशन ये है कि वो सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। तो टोटल नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर Q एलिमेंट्स है तो Q-1 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो Q-1 अगर ऑर्डर हुआ, जैसे कि GF7 है तो 7-1 6 अगर ऑर्डर हुआ तो वो प्रिमिटिव एलिमेंट है। तो 3 इज अ प्रिमिटिव एलिमेंट बट 4 इज नॉट अ प्रिमिटिव एलिमेंट बिकॉज 7-1 is 6 and 4 to power 6 is not 1। 4 का ऑर्डर है 3 जो कि उसकी पावर है जिससे 1 आ जाए, बट ये 3 जो ऑर्डर है वो Q-1 नहीं है, इसलिए ये प्रिमिटिव एलिमेंट नहीं है, ये प्रिमिटिव एलिमेंट है। प्रिमिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं किसी फील्ड के, जिनसे सारे एलिमेंट्स, primitive element generates all the non-zero elements of GFQ। non-zero मतलब जीरो के बाद आते हैं Q-1 elements। तो this is about primitive element। अगर हम कंप्यूटेशंस करना चाहें, पॉलिनोमियल कंप्यूटेशंस, तो पॉलिनोमियल fx लिखा जा सकता है, और बाइनरी फील्ड GF2 में हम बात करें तो 2 ही एलिमेंट्स होंगे, तो इनके कोफिशिएंट 0 या 1 ही होगा, और वेरिएबल एक ही लें x, तो हम उसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल जो है fx कैन बी रिटन एज या तो कांस्टेंट नंबर f0 प्लस f1x प्लस f2x² प्लस ऐसे करते करते fn xn। xn में n इज द पावर, इज द हाईएस्ट ऑर्डर एंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो GF2 के एलिमेंट्स होंगे, और वेरिएबल है x, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर x की जो नॉन जीरो होगी कोएफिशिएंट की वही होगी। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर GF2 है तो उससे कितने बन सकते हैं। अगर GF2 है तो उसमें 2 ही, GF2 से कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं। GF2 का जनरली अगर मैं लिखूं तो ये आता है फंक्शन fx डिग्री 2 का, सॉरी डिग्री 2 पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 1। यहाँ 1 का एग्जाम्पल दिया है, तो डिग्री इसकी देखें x की 1 है, तो ये इक्वेशन यहीं तक लिखेंगे पॉलिनोमियल की। अब कितने डिफरेंट बन सकते हैं पॉलिनोमियल्स, अगर x डिग्री इसकी पॉलिनोमियल की 1 हुई तो, डिग्री 1 हुई तो यहाँ पे 0 और 1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप परम्यूट कर दो, 0 0 हो, दोनों 0 हो तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ सिंपली अ 0। 0 1 हो, जो ये रहा, तो ये रहा एक पॉलिनोमियल, एक x हो गया पॉलिनोमियल यहाँ जो दिखाया है। और अगर 0 1 के बाद मैं 1 0 रख दूँ तो 1 itself इज़ अ कांस्टेंट नंबर अगेन, और अगर मैं 1 1 रख दूँ तो 1 प्लस x हो जाएगा। तो चारों कॉम्बिनेशन रख के देख ली तो दो पॉलिनोमियल
इक्वेशंस लिखने में आ रही है, जो कि है x और 1 + x। सिमिलरली अगर मैं डिग्री 2 रखूँ GF2 में, तो मेरे पास कितने पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं? कह रहा है 4। तो वो देखते हैं कैसे होगा। डिग्री देखिए fx की मैंने 2 कर ली, f0 + f1 x जनरल रिप्रेजेंटेशन में डिग्री 2 हाईएस्ट रखी है। अब यहाँ पे मैं f0, f1 और f2 की वैल्यूज़ लिखूँगा 0 या 1, क्योंकि GF2 में हम बना रहे हैं पॉलिनोमियल। 0 और 1 लिखूँगा तो टोटल 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगी। या तो दोनों 0 लिख दूँ, या 0 1, या 1 0, या 1 1। 1 1 यहाँ लिखा है, 1 0 यहाँ लिखा है। तो इस केस में हमको अगर डिग्री 2 का रखना है तो इसको 1 हमेशा रखना ही पड़ेगा, तभी तो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। तो इसको 1 रख दीजिए, इसको कांस्टेंट 1 रख दीजिए और यहाँ वेरिएशन करके देख लीजिए। तो ये तो आएगा ही 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स में। और यहाँ देखिए क्या होगा, एक ये पॉलिनोमियल हो गया, एक x + x² पॉलिनोमियल हो गया, एक 1 + x + x² हो गया, और एक 1 + x² हो गया। इसीलिए कहा है 4 पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल इन GF2। तो बेसिकली इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही करते हैं। थोड़ा अजीब तरीके से लिखी गई है, पर जब मैं बोलूँगा तब मतलब समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अगर उसमें x की कोई वैल्यू रखें और पॉलिनोमियल की जो फंक्शन को इक्वेट करें तो जो 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यू है वो उसकी रूट कहलाती है। रूट को हम ये कह सकते हैं कि जो x = a जो रूट है उसकी, इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर ये रूट पुट करें तो ऐसा। तो x - a इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं = 0। तो x - a क्या है? इट इज़ अ फैक्टर। ठीक है, x = है, a को उधर ले जाएंगे, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। और x - a क्या होगा? इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फैक्टर के बाद हम ये कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि x - a फैक्टर है तो x + a भी फैक्टर होगा गैलोस फील्ड में। ये इसलिए क्योंकि प्लस और माइनस जो साइन है GF2 में वो मैटर नहीं करते, वो सेम होते हैं। तो ये कैसे आपको पता लगेगा? ये एक्सप्लेन किया था मैंने वीडियो में, जिसमें there was a table. In that table I mentioned how you can, this is the table, how you can say that in GF2 plus and minus values are same. तो इसका एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें पता लग जाएगा। रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो बुक में दे रखी है वो ये है। इसको इजीली समझने या याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री हो m, उसको अगर कोई पॉलिनोमियल डिवाइड ना कर पाए, जो कि होगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री इससे कम होगी। px की डिग्री m है, इससे कम डिग्री के सारे पॉलिनोमियल 0 से लेके m तक, m से कम तक की डिग्री के पॉलिनोमियल अगर इसको डिवाइड नहीं कर पाए तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो समरी में एक बार फिर बोल के देखते हैं। px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री m है, इस डिग्री से कम के सारे पॉलिनोमियल ले लो, अगर वो डिवाइड नहीं कर पाए इसको तो ये पॉलिनोमियल होगा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। जैसा कि हम देख चुके हैं, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल px है जो उससे कम डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं हो पाता। तो एक तरह का ये ऐसा फैक्टर है जो सब फैक्टर नहीं बना सकता, ऐसा पॉलिनोमियल जो फिर और डिवाइड नहीं हो सकता। अगर यही पॉलिनोमियल लिया जाए और अगर ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल किसी x⁴n+1 वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे और इससे कम पावर वाले 15 से कम पावर वाले को डिवाइड नहीं कर पाए, तो ये खुद प्रिमिटिव पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्रिमिटिव जब होगा जब वो किसी पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म है x⁴n+1 n⁻m-1 ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे और इससे कम वाले को डिवाइड नहीं कर पाए। मतलब x⁴n+1 वाले को डिवाइड तो कर देगा ये, बट इससे कम पावर वाले को डिवाइड नहीं करेगा। n की पावर और कम नहीं हो सकती। ठीक है, so this is primitive polynomial. Irreducible polynomial can become primitive polynomial under this condition. नेक्स्ट है
प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स की। तो ये पॉलिनोमियल्स इरेड्यूसिबल हैं सारे, और इनका जो पावर है वो m है, जो 3 है। तो 3 2 power m minus 1 इज n। तो n फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे, n इज 2 power m minus 1। तो 3 is m, then that means 2 power 3 is 8, 8 minus 1, 2 power 3 is 8, 8 minus 1 will be 7, and this 7 is n. So this irreducible polynomial can divide x to power 7 minus 1, and no other polynomial lower than degree x to power 7 minus 1. So this is the definition for a primitive polynomial. So these are the list of primitive polynomials. They all are reducible, and the powers of their m is 8, 2 to power 8. What is that? 2 to power 5 is 32, 6 is 64, 7 is 128, 8 is 256, then 256 minus 1 is 255. X to power 255 minus 1 can be divided by this polynomial, and not any other lesser powers of than 255 can be divided by this polynomial. So that's why this is called as primitive polynomial. There is no direct way of finding primitive polynomials to date. And this was, I think I learned from NPTEL lectures by Professor Ranjan Bose, IIT Delhi. नेक्स्ट टॉपिक है कैसे कंस्ट्रक्ट करें गैलोइस एक्सटेंडेड फील्ड्स। तो एक्सटेंडेड फील्ड्स होती हैं GF 2 to power m। तो इन गैलोइस फील्ड को कंस्ट्रक्ट करना है हमको बेस फील्ड से या ग्राउंड फील्ड से, जिनको बोलते हैं GF2, और पावर m इज एक्सटेंडेड फील्ड। इसको बनाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको समझने में। जनरली पहले तो ये देख लीजिए एलिमेंट्स कितने होंगे। 2 to power m, फॉर एग्जांपल m2 लें तो 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 4 होंगे हमारे पास एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि उन पे जब ऑपरेशन किया जाए ऑपरेटर से तो वो यही एलिमेंट्स आए रिजल्ट। इसलिए 0 और 1 तो बेसिकली एलिमेंट होते ही हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ा की पावर्स है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नया सिंबल डिफाइन करते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा को हम डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। कैसे करेंगे कि टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, अल्फ़ा टू पावर 0 इज़ 1, अल्फ़ा टू पावर 1 इज़ अल्फ़ा टू पावर 2 इज़ दिस, एंड टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 to power टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 to power m, जो एक्सटेंडेड फील्ड है, और इसकी पावर कैसे दी जाएगी? पावर ऐसे दी जाएगी। तो इसको बुक में जब ऐसे लिखा है तो उसको आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी कि अल्फ़ा 2 to power -2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 एलिमेंट तो हैं ही और बाकी के एलिमेंट हमको करने हैं। बेस्ट है कि इफ़ वी गो फॉर अ एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल से ये थ्योरी ज़्यादा आसानी से क्लियर होती है। तो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे m4 लिया है, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल लिया है। एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बतानी है कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से ही एक्सटेंडेड फील्ड्स बनाई जाती हैं, और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जो x to power n+1 को डिवाइड करें और उससे कम वाले को डिवाइड ना कर पाएँ। और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये खुद की पावर से कम की पावर्स वाले से डिवाइड नहीं होते। तो स्पेशल पॉलिनोमियल्स है जो कि प्रोवाइडेड होता है टेबल्स में या फिर गिवन होगा क्वेश्चन में सेपरेटली। और इससे अब हम GF2 जो बेस फील्ड है उससे एक्सटेंडेड फील्ड बनाएंगे। एक्सटेंडेड फील्ड बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिख लेंगे रीअरेंज करके इसकी हाईएस्ट पावर में। सबसे पहले अल्फ़ा से इसको पुट किया, रिप्लेस किया वेरिएबल x को, और इसको हमने इक्वेशन को अल्फ़ा टू पावर 4 लिख लिया। ये अभी एक आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी से हम रिपीटेडली यूज़ करके हम अब पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे या एलिमेंट्स बनाएंगे GF
2 एग्जाम्पल लिया है। तो बेस फील्ड GF2 है, बेस फील्ड GF2 से GF2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अल्फ़ा जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 0 1 α2 α2 तो होंगे ही, और α4 विल बी आवर फर्स्ट एलिमेंट इन पोलिनोमियल टू टर्म्स फ्रॉम 1 प्लस अल्फा विच विल बी α4 जो होगा बराबर रीअरेंज करने से आया 1 प्लस अल्फा। तो पहले एलिमेंट्स मिल गए 0 1 अल्फा α2 α2 और α4 ऐसे लिखा जाएगा। α5 है जो इस तरह से लिखा जाएगा, अल्फा इंटू α4 पावर सम कर दें तो α5 आता है, और राइट साइड में जाएं तो α4 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। लोएस्ट जो आपके एलिमेंट्स हैं इस फील्ड के उस फॉर्म में लिखा गया है ये। तो α5 को हम एलिमेंट को हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशंस ले सकते हैं अल्फ़ा की पावर्स को जो एलिमेंट्स हैं। अब दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है सिंपली उनकी पावर्स को ऐड करके जब आप लिखोगे तो 19 जो है वो बाहर चले जाएगा फील्ड के मैक्सिमम जो होंगे पार्टिसिपेंट्स से। अब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स लिख के दिखाने ही होंगे, वो ये होंगे कि 0 और 1 तो होता ही है, फिर होता है α2 α2 ऐसे करते करते टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 2 16 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो दो तो ये हैं, तो α2 14 तक होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं α2 1 α2 2 α2 3 4 5 6 7 2 14। ये एलिमेंट्स हो गए 14 एलिमेंट, और बाकी दो एलिमेंट मिलके 16 एलिमेंट। तो GF2 फील्ड के ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखने लग गए, और अल्फ़ा की पावर्स में सिंपली एलिमेंट्स लिख दिए, और ये इसकी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और जब हम ऐड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई करने का, दो एलिमेंट्स है α2 12 है इसके अंदर, α2 7 है इसके अंदर, पर जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड करेंगे तो 19 आएगा, बट 19 इज़ नॉट इनसाइड दिस। तो इसको क्या करेंगे, मॉड ऑपरेशन लेंगे। मॉड ऑपरेशन में क्या है कि α2 19 कैसे आता है, α2 15 जब हम लिखते हैं दैट कम्स बैक टू बी टू 1, वापस से रिपीटिशन शुरू होता है। तो α2 14 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर लेंगे। कैसे, α2 15 इज़ 1 16 17 18 19 विच इज़ α2 4। α2 4 रिप्रेजेंट करता है α2 19 को इस बेस फील्ड में, जो कि है एक्चुअली बेस फील्ड। अब GF2 4 बोल रहा हूँ पर ये खुद बेस फील्ड से बनी है। इस एक्सटेंडेड फील्ड में ये एलिमेंट α2 19 रिप्रेजेंट होता है α2 4 से। अब मान लो एक एग्जांपल हम डिवीजन का लें कि हमको डिवाइड करना है α2 4 को α2 14 12 से। तो α2 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो इसी फील्ड से निकालना है। वो ऐसा एलिमेंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। α2 12 इंटू α2 3 इज़ α2 15, और α2 15 हमको पता है रिप्रेजेंटेशन उसकी 1 है, और 1 आने के बाद इसका हमको पता चल गया कि α2 3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो हम इसको अब न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इनको ऐड करके लिख देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इस एक्सटेंडेड फील्ड में डिवीजन इन एलिमेंट्स का रिजल्ट देगा। ये कैसे देगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होकर लिखेंगे, और ये अंदर एलिमेंट में ही है तो ये आंसर है। इसी तरह से हम एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन का एग्जांपल दे रखा है कि दो एलिमेंट्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो सिंपली या तो पावर्स ऐड कर दो, 7 + 5 12 लिख दो, और α2 12 इसमें है, इसके अंदर है। α2 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है। आप रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन करते जाएं इन चीज़ों का, और मिनिमम जो एलिमेंटल फॉर्म्स है उसमें लिखे जाएं। एनीवे तो इन्होंने डायरेक्ट फिर यहाँ से α2 5 का ये लिखा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, α2 7 का यहाँ से लिखा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। ये लिखने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो हम GF2 बेस फील्ड है, बेस फील्ड में ये रूल है कि
अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा होगा, 2 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कट जाएगा, 0 लिखा नहीं जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। और इसको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन को आप एलिमेंटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यू आर प्लेइंग इन दिस फील्ड, यू आर राइटिंग द एलिमेंट्स, you are writing their polynomial representation, you are doing multiplication, addition and division problems। तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप फिर ये टेबल बना पाएंगे जिसमें पावर रिप्रेजेंटेशंस हो जाएंगी, जो एलिमेंट्स होंगे इस GF2 फील्ड के, जो प्रिमिटिव एलिमेंट यूज़ किया गया है उससे आइडेंटिटी बनाई जाएगी और इसके रिपीटेड सब्सटीट्यूशन से हम लोग बाकी के पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशंस लिख लेंगे और फिर इसको टपल रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज कि जो हम लोग पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं एलिमेंट्स की किसी फील्ड में ड्यू टू सम प्रिमिटिव एलिमेंट क्रिएटेड दिस, तो डायरेक्टली मुझे धीरे धीरे ये बनाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। मुझे डायरेक्टली अगर किसी की पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं प्रिमिटिव एलिमेंट से डिवाइड कर दूंगा उस एलिमेंट को। जैसे α⁴ की मेरे को डायरेक्ट लिखनी है, जो कि इससे डायरेक्ट पता लग रही है 1 + अल्फ़ा ही होगी इसकी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। पर इसको एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली इसकी लेनी है तो इसको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, α⁴ को डिवाइड कर देंगे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से, डिवाइड करेंगे जब 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, कट जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो उसकी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ऐसे ही आप दूसरा भी कोई भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली α⁴ यहाँ लिख दीजिए और इसको प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो डायरेक्ट मुझे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। This was again learned from NPTEL's lecture by Professor Ranjan Bose, IIT Delhi, and further on this in later videos। अगर कोई पॉलिनोमियल है fx GF2 में बेस फील्ड में और उसकी कोई एक्सटेंशन फील्ड ले लें जिसमें कोई एलिमेंट हो बीटा, तो कोई भी एक्सटेंशन फील्ड बेस फील्ड की हो उसका एक एलिमेंट बीटा है। अगर बीटा रूट है इस पॉलिनोमियल fx का जो बेस फील्ड में है तो उसके जो कॉन्जुगेट्स होंगे वो भी रूट्स होंगे fx के। कॉन्जुगेट्स निकाले जाते हैं β 2l वेयर l इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें रिवीजन ऐसे कर सकते हैं कि fx एक पॉलिनोमियल है GF2 में और बीटा है एक एलिमेंट एक्सटेंडेड फील्ड का GF2m का। अगर बीटा रूट है fx का तो बीटा के जो कॉन्जुगेट्स होंगे β 2l वो भी रूट होंगे इस fx के, l इज ग्रेटर देन 0। आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि समरी से कि हमको पता है कि कोई भी फील्ड है GFP प्राइम फील्ड है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं तो वो रिपीटिशन कहाँ से होता है, a⁴ से रिपीटिशन शुरू है। कोई भी एलिमेंट है उसकी पावर में ये लगाएंगे तो वो 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई भी प्राइम फील्ड है जो 0 1 2 से लेके कहीं तक जाते हैं और वो जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है कोई भी एक, लेट अस से GF4, तो GF4 में कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लेते हैं। जो एलिमेंट्स हैं GF4 में 0 1 2 3, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट रैंडमली लेट से 3 लिया तो 3 टू पावर p-1 या q-1 रखिए तो 27 आता है, जो कि mod 4 करके 3 लिखा जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज q इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये 1 कब आएगा, ऐसी फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नेक्स्ट लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेके कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 टू पावर फील्ड की पावर -1 is 4 is 4 and let us take all the numbers, let's say 2 to power 5 this and this is 1। तो कहने का ये मतलब है कि पावर जो होगी अल्फा टू पावर q या p -1 विल ऑलवेज गिव यू अ 1, जो कि रिपीटिशन स्टेट होती है। तो जनरली ये फॉर्मूला है GF में कोई भी a एलिमेंट है उसकी पावर q-1 करके रहें तो 1 होगा, रिपीटिशन हो जाएगा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि एक्सटेंडेड फील्ड में भी ऐसा ही होगा कि अल्फा टू पावर q-1, q इज 2 to power m प्राइम नंबर, 2 to power m is extended number
-1 will give 0. Rearrange this. Let's say beta is a root, so just write the generalized form, and in this generalized form algebraically manipulate this x to power 1 and all that, you get this equation. अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि इस इक्वेशन की रूट बीटा है, तो फिर बीटा जो है इस डिग्री से लेस डिग्री के पॉलिनोमियल की भी रूट होंगी। अब एक फंक्शन लेते हैं जिसकी स्मॉलेस्ट डिग्री GF2 में हो कि सच दैट उसका फैक्टर हो बीटा या रूट हो बीटा, स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है 5x। तो 5x एक यूनिक पॉलिनोमियल है और इसको मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो वही थ्योरी है, डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है कि GF2 टू पावर 4 एक्सटेंडेड फील्ड है, बीटा इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं, अल्फा टू पावर 3 जो एक एलिमेंट है उसके सारे कॉन्जुगेट्स निकाल लो। अब ये जो है ये रूट्स हैं उस मिनिमल पॉलिनोमियल की, तो इससे जो फैक्टर्स बनेंगे और फैक्टर्स से जो अलजेब्राइक पॉलिनोमियल बनेगा दैट विल बी मिनिमल पॉलिनोमियल। तो हाउ टू फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज द मेथड। कोई भी एक रूट लेंगे और उसके कॉन्जुगेट्स बीटा 2 टू पावर l करके फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद इन कॉन्जुगेट रूट्स को हम फैक्टर्स में लिख के मल्टीप्लाई करके उसके एक पॉलिनोमियल बना देंगे और वो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो एक एज अ जनरल एग्जांपल सारे मिनिमल पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं GF2 टू पावर 4 के, जो जनरेट की गई है इस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से। अब प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से जनरेट करने का मतलब ये है कि x टू पावर n माइनस 1, n इज 2 टू पावर m प्लस 1 उससे आता है, और ये हमारा अलजेब्राइक एक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। और ये हमने पहले किया था एक वीडियो में कि ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इस फील्ड के GF2 पावर 2 टू पावर 4 ये वैनिश हो जाएंगे और ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाएगी ये, जिसमें से elements will magically vanish. Anyway, some of these factors group together and form minimal polynomials. तो मिनिमल पॉलिनोमियल्स में बीटा एक ऐसी फंक्शन की रूट है जिसके कॉन्जुगेट्स भी उस फंक्शन के रूट होते हैं, और उन रूट्स के फैक्टर्स बना के आप उन मिनिमल पॉलिनोमियल्स को डिस्कवर कर सकते हो। अगेन लर्न दिस फ्रॉम IIT Delhi स्नैपटेल लेक्चर बाय प्रोफेसर रंजन बोस। तो जनरली अभी स्मॉल एग्जाम्स में, लोअर एग्जाम्स में आप डायरेक्टली मिनिमल पॉलिनोमियल्स अगर आपसे फाइंड करने के लिए कहें किसी फील्ड में, तो आपको उस फील्ड का एक जो है रूट दिया हुआ होगा, एलिमेंट दिया हुआ होगा, उसके कॉन्जुगेट्स निकाल के फैक्टर्स बना के आप मल्टीप्लाई करके मिनिमल पॉलिनोमियल बता पाओगे।